जय हिंद बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। क्लास 8th की इंग्लिश की बुक से आज हम लोग लेसन 6 को रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 6 है आवसम आसाम। Assam is a state located in the northeastern part of India. It is situated just below the eastern Himalaya foothills. It is surrounded by the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Meghalaya, which together with Assam are known as the Seven Sisters. Dispur is the capital of Assam. Assam is a land full of natural beauty. It has blue hills, dense forests with diverse flora and fauna, big rivers and fertile valleys. Assam is the world's largest tea-growing state. The great Brahmaputra river flows through Assam. Agriculture is the main occupation here. Rice, fruits, jute, sugarcanes and tea are the chief agriculture produce of the state. The state also produces nearly half of the country's total production of tea. The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone. The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and woodcraft are some major success of self-employment for the people of Assam. Assam is also famous for its national parks. A national park is a large area of forest land. The government looks after these parks. The Kaziranga National Park in a famous wildlife sanctuary. Rhinoceros, elephants, leopards and the Indian bison are some of the animals you can see in Kaziranga. You can go in an open jeep, a car or a minibus into the forest to see these wild animals. If you like, you can travel on an elephant's back as well. The people of Assam speak Assamese. Assam is also a land of festivals. Bihu is a famous Assamese festivals. It is celebrated in the month of April. People from all religions take part in this celebration. The celebration go on for the whole month. Young men and women wear gold-colored silk dresses and do a special dance called Bihu dance. Boat races are held during Bihu. Many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river banks. तो ये चैप्टर जो है हमने पढ़ लिया और मैंने बताया था कि आप जो है जो कठिन वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए और एक तरफ शब्द रहेगा, बीच में उच्चारण रहेगा और फिर मीनिंग रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग है। तो जो कठिन शब्द है यहाँ पे लिख लिया गया, उसका उच्चारण यहाँ पे लिख लिया जाएगा, उसकी मीनिंग यहाँ पे लिख ली जाएगी और उसको याद किया जाएगा। और जब उसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो फिर इसकी हिंदी में निकालना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सलाह मेरी जो है आपके लिए काफ़ी काम की होगी। और आइए इसकी हिंदी भी जान लेते हैं। तो देखिए कठिन शब्द जो यहाँ पे जो दिए हैं वो क्या क्या है यहाँ पे। आवसम माने होता है शानदार। फुथिल्स पहाड़ों के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ। फौना है क्षेत्र विशेष के जीव जंतु, वहाँ का कोई जीव जंतु है। फ्लोरा है, फ्लोरा क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे हैं। डेंस है, घना हो गया। रिसोर्सेज हो गया, संसाधन। सेंचुरी हो गया, पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान, सेंचुरी। और बिसौन जंगली भैंसा। तो यहाँ पे आइए इसको पकड़ लेते हैं। आसाम, शानदार आसाम। और आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तरी और पूर्वी है ना, नॉर्थ
और ईस्टर्न पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी भाग में भारत के बसा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है असम। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयाज फुटहिल्स, है ना, ईस्टर्न पूर्वी हिमालय के निचली पहाड़ियों में बसा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाई द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यहाँ पे ये इन राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, which together with Assam are known as the सेवन सिस्टर्स। और इसीलिए जो है इनके साथ मिला करके इनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर जो है आसाम की राजधानी है। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक राज्य है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, नीली नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूना, जिसके अंदर जो है फ्लोरा और फ्यूना के पौधे हैं। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज, बड़ी बड़ी नदियां हैं और उपजाऊ घाटियां हैं। आसाम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। और आसाम जो है विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। और इन ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत फेमस है, महान है ना, ग्रेट मतलब महान होता है, तो यहाँ से बहती हुई जाती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन्स एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। इस राज्य के सबसे प्रमुख जो फसलें हैं वो क्या है? चावल है, फल है, फ्रूट्स फल है, जूट है, शुगर केन गन्ना है और चाय है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। पूरे देश का आधा चाय जो है उत्पादन यहीं पे होता है आसाम में। द स्टेट इज आल्सो रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ ये जो है राज्य है। सच एज, जैसे कि गैस हो गया और कोयल, चूना पत्थर, तो इन सब चीज़ों से भरा हुआ ये राज्य है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोएट्री एंड टेराकोटा। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोएट्री एंड टेराकोटा वर्क्स, ब्रास क्राफ्ट। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा वर्क है, एंड ब्रास पीतल के, और ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, बांस के जो है कलाकारी, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, है ना, सिल्क और कॉटन के कपड़ों की बुनाई, वुड क्राफ्ट और लकड़ी की कलाकारी, असम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। तो ये कुछ मुख्य व्यवसाय है जो यहाँ के लोगों के लिए जो है स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है। और आसाम इज आल्सो फेमस फॉर नेशनल पार्क्स। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी, इसका नेशनल पार्क इज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो बहुत बड़ा एरिया है जो फॉरेस्ट लैंड में है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दिस पार्क्स। इसकी देखभाल जो है सरकार करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, जानवर, ये जो है बहुत बड़ा सेंचुरी है काजीरंगा जिसका नाम है। ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। Rhinoceros, elephant, leopards and Indian bison are some of the animals you can see in काजीरंगा। काजीरंगा में आपको तमाम जंगली जानवर मिल जाएंगे, जैसे कि राइनोसोरस हो गया, एलिफेंट्स हो गया, लियोपार्ड हो गया एंड इंडियन बाइसोन। और यू कैन गो इन एन ओपन जीप, ए कार और ए मिनी बस। आपको वहाँ घूमने के लिए ओपन जीप मिलेगी, कार या फिर मिनी बस मिलेगी, इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। इनको देखने के लिए, है ना, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए वहाँ पे सुविधाएं हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। और अगर आप चाहते हैं तो हाथी के जो है पीठ पे भी बैठे घूम सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और आसामीज। वहाँ के लोग आसामी बोलते हैं। आसाम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, है ना, त्योहारों का प्रदेश है। बिहू इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल्स। बिहू वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स टू टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। वहाँ का मुख्य त्यौहार बिहू है जो अप्रैल में मनाया जाता है। और पूरे इंडिया के, है ना, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट, पूरे धर्म के, सभी धर्मों के लोग इसमें जो है हिस्सा लेते हैं, इसको मनाते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ्स, पूरे महीने भर चलता है ये सेलिब्रेशन।
यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। वहाँ के जो युवक और युवतियाँ हैं वो सोने के पानी वाले सिल्क ड्रेसेस कपड़े पहनते हैं और स्पेशल डांस होता है, इसको बिहू बोलते हैं। बोट रेसेस वहाँ पे कराई जाती हैं और मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दिस रेस एंड ए लॉट ऑफ पीपल विथ वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी टीमें इस खेल में हिस्सा लेती हैं और नदी किनारे बैठ के लोग इस चीज़ का आनंद लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ लिया है और इसकी मीनिंग भी जान ली है। तो मैं फिर से कहूँगा, एक बार थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप जो है कापी ले लीजिएगा, जो टफ वर्ड्स हैं उनको एक तरफ से उतार डालिए और उसका उच्चारण लिख लीजिए और उसकी मीनिंग को लिख के उसको याद कर लीजिए। जब तक इसको बार बार दोहराएंगे नहीं, चीज़ें याद नहीं होंगी, भूल जाएंगे आप। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर रही हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे तमाम वीडियो पढ़ रहे हैं, डाल रहा हूँ मैं, जिससे आपकी हेल्प होने वाली है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।